Very good evening, everybody. So today we are having a debate session on the farmer protest. Okay, so as we know that our government has passed three laws, or we can say three bills on the farmers, but our farmers are on the streets and roads because they are not satisfied with these bills. They are protesting against the government and these bills, and they want to be removed. These laws they want government to take back these bills, and some farmers also want to amend these laws. Okay, so there are some problems, so that's why we are here to discuss on these topics. Okay, so these topics are on the MSPs and open market, whatever the issue they are facing. Okay, so today is also Bharat Bandh, okay, which is basically organized by the farmers union. So today we are going to discuss their topics. Okay, so I request to the coordinator Simran to start the debate session and to give the opening speech. Yes, Simran. Yes, Simran. A very good afternoon, everyone. We all have gathered here in a virtual way in order to put our opinions for the Kisan Andolan. We all have gathered here in a virtual way in order to put our opinions for the Kisan Andolan. Our government is on the verge of passing the agricultural bill. But yes, our farmers do not agree with it. The government has surely thought about the farmers' welfare and of the profit of our country. But the farmers see their loss and some demerits in this bill. That is the reason they have been protesting in such a fierce way, not taking care of the corona or the cold winters of the Delhi regions. Yes, the government has given assurance to solve all the issues of the farmers, but the farmers aren't satisfied with it. To discuss all of this, today we have gathered here for the Kisan Andolan discussion. So now we start with it. Okay, so now I am going to, yes, to Shreya, and she is going to take the governmental side. Yes, Shreya. Yes, sir. Sir, I am coming to the current scenario. Actually, there is no sign of any agreement between the government and the protesting farmers even after the fifth round of talks. Actually, farmers are sticking to the one and the major point that the laws are anti-national, anti-farmers laws. But actually, the government says that these laws are in interest of farmers only to make them richer. Benefits of the laws are now the farmers have got a new option to trade. They have the freedom to sell their produce outside the APMC, that is Agriculture Produce Market Community Market, and there will be no tax on such trade, and they will get a higher price of that. So they are in profit only. Farmers can sell their produce within the state or anywhere else in the country, and there will be no restriction on this type of trade. This will benefit the farmers and they will be able to sell the produce to the merchants wherever they get the higher prices. There will be no need of any kind of license for traders to purchase agriculture produce of farmers in the trade area or outside the APMC mandi. But also those holding PAN card or any other document notified by the central government can join this trade. In case of any dispute arising in such business, the matter will be settled within 30 days by the sub-divisional magistrate. Now what the thing is that from past 40 years, the farmers were demanding the same, but that they were saying कि जो middlemen होते हैं कि उनका आधा पैसा तो middlemen खा लेते हैं. But now the thing is कि अब middlemen की बाय दीज लॉज मिडलमैन की इनकम हो गई है जीरो बैठे बैठे. तो इन्होंने फार्मर्स को एक फेस ले लिया है. एक्चुअली these laws are in farmers interest only, but some farmers from Punjab are misleaded. They aren't even debating on merits, but some farmers have welcomed it. For example, let's take an example. Punjab के अंदर before the laws, I am talking about before the laws,
3,500 करोड़ FCI ने मिडलमैन को दिए थे। क्यों? क्योंकि उनका 2.5% था उनका, और किस बात के लिए? उनका बस एक ही काम होता है, रसीद काटना। दे डोंट हैव एनी वर्क। जो मिडलमैन का होता है, लेबर अलग होता है, ऑल दी स्टफ अलग होता है। ₹470 टन उनका ये होता है, ये सर फिक्स्ड है Yes, ऑलरेडी। yes, yes. अगर ये इतने सालों से फार्मर का भलाई कर रहे होते ना, तो आज इनकी सरकार होती पंजाब में। हाँ. ये तो सर सबसे पहली बात है। और सर वादे तो 2014 से हुए जा रहे हैं, आज तक हम्म, वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए आज प्रोटेस्ट नो देखने को नो मिल नो रहा है। 2009 फार्मर का तो भला हो ही रहा है इस देश में। कॉलम 3 में लिखा हुआ है। 2014 से का पहले जो- तो आप लोगों की सरकार थी, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। तो उससे पहले लिखा प्रोटेस्ट तो भी नहीं बहुत हुआ कुछ था। होता है, करते कौन है? अरे उससे पहले तो प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था। गवर्नमेंट अरे 2014 2014 से पहले तो प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था। प्रोटेस्ट तो 2014 के बाद हो रहा है। अब बोलो क्या बोलोगे। वो तब जो था ना, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो कॉलम 3 लाइन 19 में खुद लिखा था कि वो डायरेक्ट इनकम फार्मर्स को देंगे, पर वो तभी पूरा नहीं कर पाए। पूरा करा गया है 2014 के बाद। अभी तुम्हारे सारे मैनिफेस्टो दिखाऊंगा कौन कौन से मैनिफेस्टो पूरे हुए हैं। MSP की सिफारिश जारी नहीं हुई थी, वो भी यहीं आकर हुई है। और हम ये नहीं कह रहे कि MSP समाप्त हो गई। PM ने कह दिया, कृषि मंत्री ने कह दिया, और अनाउंसमेंट भी हो चुकी है एक्चुअल में। अनाउंसमेंट को रिटन में नहीं दिया गया है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट उसी पर है। उन्हें रिटन में चाहिए सब। अनाउंसमेंट तो कितनी चीजों की हुई है, पर कितनी फुलफिल हुई है, क्वेश्चन वहां पर आता है। प्रोटेस्ट करना इजी नहीं होता। प्रोटेस्ट इसी बात पर हो रहा है कि उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो जब तक रिटर्न में ये नहीं आता, पहले भी MSP कहीं लिखी नहीं गई थी। MSP 1960 You are में green saying revolution कि सबसे आगे फार्मर्स सबसे इस मिलता है। मैनिफेस्टो से रिच हो 1960 जाएंगे, के तो बाद से। फार्मर्स सड़क पे क्यों है? फार्मर के सपोर्ट में इतने सारे स्पोर्ट्स फार्मर्स का है ही नहीं, घाटा है मिडलमैन का। नाउ द सम फार्मर्स आर मिसलीडेड, सम फार्मर्स हैव ऑलरेडी वेलकम द चेंज। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अभी जिन्होंने वेलकम नहीं किया उनका I don't concern feel, Shreya, what you're saying is right. सरकार सबसे नहीं किसान बनती। सरकार सरकार को सबसे बनती है। एग्जाम्पल ले लो, अगर उसको 16 रुपए पे मिल रहा है तो क्या वो 16 रुपए पे नहीं लेगा? Why is he denying to the fact कि उसे वो 16 रुपए नहीं, उसको लिखने like everything is just being announced, nothing is there in written, you know. So what, like कोई प्रॉफिट को क्यों नहीं चाहेगा? मतलब क्यों किसी को प्रॉफिट, मतलब farmers want to be rich. And अगर हम देखें भी तो आई एम नॉट टॉकिंग कि आपकी गवर्नमेंट थी या नहीं, लेकिन चेंज हैज नॉट कम। आप देखोगे सिर्फ 21, लाइक इफ यू लुक एट द टोटल रेशियो, जो गवर्नमेंट की जो फार्मर्स की कंडीशन थी 1990 में, वो सिर्फ 21% ही इंक्रीज हुई है फार्मर्स की जो मतलब ग्रोथ। लेकिन अगर तुम सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो टीचर्स भी हैं, उनकी 180% 200% तक इंक्रीज हुआ है, जबकि कोई फार्मर्स तो हमारा पॉइंट है, फार्मर्स के भलाई में बोला बहुत कुछ जा रहा है, करा क्या जा रहा है? तो इट्स नॉट अ पॉइंट कि मिसलीड हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बता ही नहीं रही है ना। गवर्नमेंट इज जस्ट सेइंग हम ये कर रहे हैं, ये करे। क्या फार्मर में इतना दिमाग नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं? ऐसे ही थोड़ी ना कोई बहकावे में आ जाएगा। यार प्लान बहुत लोगों से बनता है, करना किसी से नहीं जाता। कि अगर वो कोई कमिटमेंट करे तो वो कि उन्हें MSP मिलेगा, क्योंकि MSP जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कर रहे हैं, जब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से फार्मर्स ट्रस्ट कर रहे हैं, और तब से सिर्फ 21% ही इंक्रीज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जबकि सरकारी ऑफिशियल्स को देख लो, मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोरोना के टाइम पे, कोरोना का जब काल चल रहा था, पंजाब में जो कॉर्न की फसल है वो 6 रुपए में बिकी है, जबकि जो आपकी MSP है वो 18 रुपीज की होती है, और 6 रुपए 1990s का रेट है। 1990s में अगर आप प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट का अगर आप देखोगे, सरकार से ज्यादा काम तो सोशल एक्टिविटीज सोनू सूद ने कर दिया है। ठीक है, तुमसे ज्यादा फंड वो देते होंगे गरीब लोगों को। नहीं सर, देखो सरकार का काम बस लॉस बनाना है, करप्शन ही इतना है, और जो हायर ऑफिशियल्स को पता नहीं चल रही है बात कि करप्शन कहाँ का हो रहा है, तो तुम सीधा तो उनको नहीं ब्लेम कर सकते। नहीं, करप्शन तो हायर ऑफिशियल्स ही कर रहे हैं ना। अगर उन्हें पता हो तो वो एक्शन लेती डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं, उन्हें सारी सिचुएशन पता है। ऑफिशियल्स तो तुम्हारे ही है, हमारे थोड़ी है।
तुम्हें देखना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है। मेरे नहीं है official। नहीं, हमें दिक्कत फार्मर्स के प्रोटेस्ट से नहीं है, हमें वो है कि अपोजिशन उसके साथ मिलके क्यों आ रहा है। अभी तक कांग्रेस अच्छा, अब तुम्हें फार्मर्स के प्रोटेस्ट से ही दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के आने से पहले अब तो इन्हें MSP का फार्मर्स के अमेंडमेंट प्रोटेस्ट से चाहिए ही था। दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के वाह, आने से पहले MSP का अमेंडमेंट वो भी रही चाहिए है ना। था, क्या लेकिन क्या उसके बाद आपने गवर्नमेंट कहा है। कि नहीं, तेरी पूरा साथ का पूरा ऐसा लॉ ही फार्मर्स वापस के करो। इनको फार्मर्स के प्रोटेस्ट से कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हमें खाना देते हैं उनसे, उनके प्रोटेस्ट से इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या अरे गवर्नमेंट भाई, करिए। तो उससे ज्यादा तो अपोजिशन फिर पार्टी दे रही है ना, ये भी फायदा ही क्या हुआ? हमारे प्रोटेस्ट का अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अपोजिशन से फर्क है, तुम्हारे करते प्रोटेस्ट हैं। के साथ अपोजिशन मिलके अपनी क्यों ये मनमानी डेमोक्रेसी है? Opposition है, क्यों हम कुछ लोग उन्हें support सपोर्ट ना कर रहे करें? हैं, opposition को ना ही हमें कुछ कहा है करने को, ना ही हम सपोर्ट उनके किया हिसाब भाई, से वही है ही। डिक्टेटरशिप नहीं चल रही यहाँ पे। नहीं कर रहे तो उन्हें सही लग रहा है। और उनका प्रोटेस्ट, अभी एक मिनट, जो श्रेया आर्य ने 2014 की बात की कि 2014 के बाद से फार्मर्स की कंडीशन मतलब बेहतर होनी स्टार्ट हुई है, मैं बता दूं 2015 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड हुए थे, फार्मर्स ने किए थे वो। तो आई डोंट थिंक कि 2014 के बाद कहीं भी बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो 21% की बात हुई कि 21% इंक्रीज हुआ है, हर सेक्टर में 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ, और जो फार्मर्स जो हमें खाना देते हैं उनके सेक्टर में सिर्फ 21%। और मैं बता दूं गवर्नमेंट 2014 मोदी जी की आई थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने क्या बोला कि काला धन निकलेगा, वो नहीं निकला। हमें डिजिटल इंडिया का होगा, वो तभी हमने देख लिया, घंटा कुछ नहीं है उसका। उसके बाद तीसरा मतलब हमें नौकरियां मिलनी चाहिए। इस साल पैंडेमिक के टाइम पे जब सबसे ज्यादा नौकरियों की जरूरत थी, हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारी कोई फैसिलिटीज जितनी मांगे थी सब खोखली हुई है। तो हम ये कैसे मान ले कि जो अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि एमएसपी में कुछ नहीं होगा, एमएसपी मिलेगा, वो कैसे मान ले कि वो तुम लोग हमें दोगे? उसका तो रिटर्न में भी नहीं आया। Can I answer? हाँ please। yes Shreya. Okay. तो दीदी ने अभी बोला कि कुछ नहीं हुआ 2014 में, सो आई मस्ट से द एग्रीकल्चर बजट विच वाज अराउंड 25 to 30,000 crore rupees before 2014 increased to 1,50,000 crore rupees. 75,000 crore rupees are being sent to farmers through direct benefit transfer under PM Kisan. 10,000 farmer produce organization FPOs are being formed in the country, and each FPO will be supported by the government. The government aims to double the income of farmers, and the initiatives like Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, to say You see, let me tell you, आप किसी भी किसान से जाकर I would पूछो, like to say something. सर मेरे को एक Yes. चीज बोलनी है। धोखाबाजी करना Yes. सबको आता One है, हर किसी को रिलीफ नहीं मिली है। कितना कुछ लिख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गांव से होके आई हूँ, उधर फार्मर्स की हालत ये है कि वहां पर मतलब जो बोल रहे हैं कि इतना बजट बढ़ा है, उसका कोई इम्पैक्ट किसी भी गांव में नहीं दिख रहा। ये जो पैसे आते हैं ना, जैसे हमने बोला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, Sir, I would करप्शन है, क्योंकि पैसे जितने भी होते हैं, जितना भी बजट बढ़ रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में जा रहा है। जिन फार्मर्स को उनकी जरूरत है उन्हें मिल ही नहीं रहा। जो तुमने 2014 का बोला कि इतना बढ़ा है, मैंने अभी क्या बोला, 2015 में सुसाइड हुआ महाराष्ट्र में। क्यों हुए 2015 में सुसाइड? इसीलिए क्योंकि उनके पास वो बजट पहुंचा ही नहीं जो पहुंचना चाहिए था। और वो क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उनका ऑफिशियल्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर हम कैसे मान ले कि गवर्नमेंट के पास सर मेरे को एक पॉइंट ऐड कितना करना है। yes भ्रष्टाचार yes हो one रहा है। second yes Dhruv Raghav you were saying something. सर श्रेया ने बोला था कि बजट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मुझे नंबर याद नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है कि बजट तो इंक्रीज हुआ होगा, पर इन्वेस्टमेंट में तो 18.8% डिक्रीज हुआ है। मतलब पैसा खाया गया है, सिंपल चीज है। अगर तुम बजट इंक्रीज कर रहे हो और फार्मर्स के लिए कम पैसा, एग्रीकल्चर में सर 18.8% डिक्लाइन हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो पैसा खाया गया है सर। सर, और बात जो श्रेया ने बोली कि जो फार्मर्स के लिए ऊपर इतना पैसा वेस्ट हुआ है, सर उस बात पे मुझे ये कहना है कि सर ये बीजेपी ने नहीं लाए। जब श्री मनमोहन जी की पता चल गया था कि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि हर राशन कार्ड पे हर इंसान को 2% गेहूं और 3% चावल फ्री मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो भी गवर्नमेंट आज की डेट पे जो अपना ये दिखा रही है ना कि हमने इतना पैसा डाल दिया उतना, क्योंकि वो बिल संसद में पास हो चुका था और कोई भी गवर्नमेंट है वो उसको चेंज नहीं कर सकती। इसीलिए बीजेपी ने ये पैसा यहाँ पे डाला है। बाकी जो फार्मर्स का था वो कार्यकाल से पहले ही फिक्स हो चुका था। तो जो पैसा जा रहा है वो पहले के कार्यकाल से जा रहा है। yes गवर्नमेंट वाले कुछ yes बोलेंगे? Dhruv yes Dhruv you were saying something. नो सर नो सर।
ओके सर मुझे यस कहना है यस 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 श्रेष्ठा फिर सर अगर राशन की हाँ बोल यस श्रेष्ठा सर मुझे ये कहना है, अगर सर इतने लोगों ने कांग्रेस ने भी और बाकी अपोजिशन ने भी इतना अपना वो समर्थन दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उनको सपोर्ट करना है करिए, लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमारा बिल जब पास हो रहा था तब आपने कुछ नहीं करा, तब राहुल गांधी अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे थे। तो तब आप बताइए, तब आपको रेज करना चाहिए था क्वेश्चन। अब जब आधा काम हो चुका है, अब आप तब बता रहे हैं। होना चाहिए तो तब करना था। हम राहुल गांधी की तरफ से नहीं, फार्मर्स की तरफ से बोल रहे हैं। तभी आधी इंफॉर्मेशन ही निकली थी। जब आधा काम हुआ था तब पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी कि लोग उस पर रिएक्ट करें। जब पूरी बात निकली तब टाइम हो चुका था, और अभी टाइम है, क्योंकि जब बिल पास हो जाएगा तब तो फार्मर्स पे आ जाएगा ना, तब क्या होगा। तो जो आधे काम में आधा टाइम ही मिला, जब अभी पूरी बात आई है तो फार्मर्स अपना पूरा प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर और रहे हैं। जो सर अभी गवर्नमेंट ने बोला है ना कि हम ओपोजिशन से ले रहे हैं अपना सपोर्ट, ओपोजिशन में सपोर्ट करें, हम उनके सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मर्स वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लग रहा है, और हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगा तो ऑफकोर्स हम वो सपोर्ट लेंगे, क्योंकि जिसका सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का चाहिए, वो तो सपोर्ट दे ही नहीं रही है। तो जिसका मिलेगा हमारा बिल, हमें गवर्नमेंट ने तो फार्मर्स की भलाई के लिए किया है ना, तो कैसे ये भलाई? उल्टा केस हो रहा है। 5 बार बैठक हुई थी। भलाई कम नुकसान ज्यादा हो रहा है इसमें। भलाई की सिर्फ हार्डली 2 या 3%, भलाई को पूरा 98 या 99% से मैं तो 2-3% भी नहीं गिनता, मैं तो 1% भी नहीं गिनता, मुझे लगता भी नहीं कि भलाई होती है। फार्मर्स में उनमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला है हमारी प्रॉब्लम्स का। तुम्हें बस एक चीज बोल दी कि रिटर्न में दे तो हमें कि एमएसपी हमें मिलेगा जितना है, लेकिन नहीं, वो रिटर्न में भी चीज नहीं आ रही, तो हम कैसे प्रोटेस्ट बंद कर दें? अगर अपोजिशन सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे कि हम करेंगे, तो हम ठीक है ना अपोजिशन के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। यस श्रेयांश कुछ गवर्नमेंट के साइड। यस सर। ओके श्रेया। महाराष्ट्र की बात आई कि जो महाराष्ट्र में जो सुसाइड जो है वो ज्यादातर डेब्ट की वजह से हुए हैं, है ना। तो इसमें गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी फंड रेज किए थे, गवर्नमेंट लेकिन फंड्स बहुत। यस श्रेयांश को मैं कुछ बोलना है। यस सर, अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट को लेके बस गंदी राजनीति चल रही है, और जो इससे पहले भी गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ खास नहीं करा था। और उस समय भी उसने कुछ खास नहीं करा था और तुम बकवास कर रहे हो। इसके अराउंड ही थी। ये कैसी लैंग्वेज है, पर ठीक है चलो ओके। हाँ, और तो क्या हो रहा है फिर ये श्रेयांश, ये राजनीति चल रही है क्या? ये किसान नहीं है, ये कह रहे हो? सर इनको भड़काया गया है। अलग अलग पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही है ताकि वो बीजेपी के अगेंस्ट हो। भड़क जाएंगे हम, हमारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? हम जब अपोजिशन के साथ खड़े तो भड़क के जाओगे ना, जब अपोजिशन के साथ भड़क के जाओगे, कोई कुछ भी बोलेगा और वो भड़क जाएंगे। अरे तो किसान भी तो उसी तरीके से मिसलीड हुए थे तुम्हारे। ये क्या बात है, किसान मिसलीड हो सकता है, पार्टी। ये श्रेष्ठा क्या ये भड़के हुए हैं किसान, ये लोग बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल भड़के हुए हैं, भड़काया गया। अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं तो अपोजिशन की बात करेंगे, सारे के सारे मिलके। देश के सारे फार्मर्स भड़के हुए हैं क्या? बस तुम में अकल है और हम सब भड़के हुए हैं। सारा काम तुम ही तो करते हो। तो करते ही है, तुम लोगों ने किया ही क्या है? किसने? फार्मर्स ने। अभी तुम्हारे तुम जो खा रहे हो ना, खाओगे और फिर खा रहे हो, किया क्या है? मतलब जिसकी खा रहे हो ना वो। फार्मर्स को नहीं कहा मैंने फार्मर्स को नहीं कहा, मैंने अपोजिशन को कहा है। तो तुमने कौन सा कुछ कर लिया? तभी तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तभी तो प्रोटेस्ट हुआ है। हमें पूछ रहे हो क्या करा है? पहले अपना काम देख लो। तभी तो बताए प्रोटेस्ट। ध्रुव अग्रवाल, सर मैं वो कुछ बोलना है। हाँ ध्रुव अग्रवाल बोलो बिल्कुल। बोलो ध्रुव अग्रवाल। मैं बता देता हूँ कि जो फार्मर है वो भड़के कैसे हैं। और मैं पहले कह था मेरी बात कोई काटेगा नहीं। हाँ ठीक है बोलो। सर देखो, सर जो फार्मर है, हम सब जानते हैं कि जो फार्मर है वो पढ़े लिखे नहीं है, और मैं बिल्कुल भी इस बात पे मैं उनको बिल्कुल चढ़ाना नहीं चाहूंगा, ठीक है। सब जानते हैं फार्मर इन्हीं की तो गलती है, इन्होंने ही तो बोला था फार्मर्स को पूरी वो एजुकेशन और पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। हाँ ध्रुव अग्रवाल, यस हाँ ध्रुव अग्रवाल बोलो। सर तो ऑपोजिशन
इस बात का फायदा उठाती है और ऑपोजिशन का तो काम है सरकार के खिलाफ कहना। हाँ हाँ उनको बस एक ये पॉइंट मिल गया कि हाँ फार्मर थोड़ा इनसे ये सरकार से थोड़ा गुस्सा हो रही है, तो इन्होंने उनको और भड़का दिया इस बात को फायदे में लेते हुए कि उनके पास एजुकेशन नहीं, तो उन्होंने उनको ये बात सारी बातें गिनवा दी कि देख इसमें क्या गलत है। कि हाँ ये तो सच बात है ना कि जो फार्मर है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पढ़े सर लिखे एक नहीं है, बारी ठीक है, दो मैं बारी ये नहीं ठीक है, कह पर रहा। इतना झूठ नहीं सह सकता मैं। गवर्नमेंट ने बेस्ट सर इतना एजुकेशन झूठ नहीं सह सकता मैं। हाँ, हाँ, अगर हाँ, हाँ। बोला होती है, अगर सबको इक्वल एजुकेशन मिली होती तो फार्मर भी हमारा आज पढ़ा लिखा होता। नहीं, लेकिन सर, इतना गवर्नमेंट वो झूठ भी नहीं नहीं रहा, सह इसमें सकता भी मैं। गवर्नमेंट की फॉल्ट है। लेकिन नहीं, इन्हें क्या दिख रहा है, वो गवा रहे हैं। ये नहीं दिख रहा कि हम एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा है। अगर तुम लोगों ने कम पैसे में एजुकेशन, और वो भी सही एजुकेशन, ये नहीं किसी को भी उठा के सरकारी नौकरी में लगा दिया, प्रॉपर चेक किया होता है हर चीज पे अगर गवर्नमेंट ने, तो आज हमारा किसान भी पढ़ा लिखा होता। और फिर तुम लोग को शायद ये बोलने का भी नहीं होता कि डिपेंड करता है ना कि उसकी फैमिली से जो पिछले सालों से मेंबर्स तो हम हैं वो लड़ते लोग हुए आ रहे थे, ऑलरेडी बस अपने फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो वही गरीब जो फार्मर अपनी पूरी उनकी फैमिली के बारे में हम चलाने बात में करते हैं। वो ऐसे किसी की यस ध्रुव कंटिन्यू रखो। ध्रुव अग्रवाल, हाँ ध्रुव अग्रवाल कंटिन्यू रखो। ध्रुव अग्रवाल यस बोल रहे थे कुछ। सर हाँ बोलो 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 तो कंटिन्यू रखो। फार्मर ने गवर्नमेंट से बस इतना मांगा है कि हाँ, उन्हें हाँ हाँ बोलो सर बोलो बोलो। देखो, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो ऐसा जैसे कह रहा हूँ लालू यादव आ गए हैं। सर झूठ दिख रहा है सर बोलने में झूठ दिख रहा है सर, बोलते भी से शर्म आ रही है। सर वो जो अपनी वीट और झूठ उगाते नहीं हैं बोल सकता मैं। सर वो चुप सर वो वीट उगाते हैं। बोलो बोलो गवर्नमेंट ध्रुव को अग्रवाल। अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या फार्मर्स हाँ। बोल नहीं पा रही हूँ ना उसके अपने कॉन्फिडेंस ऐसी बात है नहीं सर, सर मैंने बोला था बिक गई गवर्नमेंट। ओके सर मैं बोलूँ गवर्नमेंट श्योर नहीं है तो फार्मर्स को लेके क्या होगी। यस ठीक है। यस मान्या तुम कुछ बोल रही थी। सर मैं बोल रही थी। बोलो बोलो। The Indian farmers are peacefully protesting while we debate and discuss here. They are against the 3 Farm Acts which were passed by the Indian Parliament in 2020 despite being discussed in 2017. These acts have been described by the media, farmers and the masses as anti-farmer laws, and it is also said that it would leave farmers at the mercy of corporates. Over 500 farmer unions are protesting. Transport unions representing over 14 million truckers, bus drivers, and taxi drivers have come out in support of the farmers, threatening to halt movement of supplies after the government failed to address the farmers' demands. And though the opposition will probably blurt something against what I say right now, this strike is a clear representation of India's unity and the government's negligence. Way back in 2017, the central government released Model Farming Acts. These acts mainly talked about expansion of scope of trade areas, gave them permission for e-commerce, and prohibited the government from levying any fees on such platforms. It also provided a 3-level dispute. Anyone who would simply read these bills would say that the government is fantastic, but look at the facts and stats. Despite the bill coming out in 2017 and being discussed since the past 3 years, there has been literally no implementation, and I'd like to emphasize on literally till date. 60% of the Indian population is employed in agriculture, and yet it only contributes to 18% of the GDP. If the government really cared, they would work on this. And let me tell you, आप e-commerce की बात करते हो, पर उसके लिए डिजिटलाइजेशन चाहिए, जो आपने पूरी तो की नहीं। फार्मर्स जो खुद हमें खाना देते हैं, वो अपने पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप यहाँ पर उनकी ई-कॉमर्स करवाना चाह रहे हो। फार्मर्स ना 2 तरह के होते हैं इस दुनिया में, एक जिनके पास पैसा होता है, वो तो चलो ई-कॉमर्स कर भी लेंगे, वो तो इस मामले में एजुकेटेड भी है, पर दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी में, those are the people who are very poor, they have to work really hard. उन्हें तो ई-कॉमर्स तो दूर, अभी उनके पास एजुकेशन भी नहीं। और हम सब जानते ही हैं कि गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छी है अवेयरनेस स्प्रेड करने में। आई वाज बीइंग sarcastic.
मैं लास्टली बोलूंगी कि गवर्नमेंट हमारी बड़ी बड़ी बातें करती है पर करती बहुत ही कम काम है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट सही है और हम उनके सपोर्ट में हैं। यस ध्रुव राघव। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इस पे। धोखे पे धोखे दिए जा रही है सर, धोखे पे धोखे दिए जा रही है। जिंदगी सबकी सरकार हो चली है। Yes. Now, yes, Shrestha, you want to say something? Government side. यस सर दिल्ली में अभी जब ये बिल थोड़े दिनों पहले पास हुआ था तब दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत आसानी से कह दिया था कि हम इसको अपने स्टेट में लागू कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट को पता लगा कि ओपोजिशन सारा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, तो उसने भी अभी हाल ही में कल ही केजरीवाल का भी बयान आया कि हम लोग फार्मर्स के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हैं। तो अभी तक उन्होंने लागू क्यों किया, मुझे ये जानना है बस। कल तो दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को अरेस्ट नहीं कर दिया था। नजरबंद। वो देर आए दुरुस्त आए, उसको अक्ल अंत में आई, लेकिन आई तो पहले हाँ क्यों किया? अगर आपको सोचना चाहिए ना, आप उस पे बिना सोचे समझे आपने अपने स्टेट में लगा दिया उसे। एग्रीकल्चरल बिल पहली बार थोड़ी ना आ रहा है, वो भी तो अमेंड होके ही आ रहा है। आपकी गवर्नमेंट ने पहले क्यों कुछ नहीं किया, आज क्यों कर रहा है? एटलीस्ट हमने किया तो, आपने तो वो भी नहीं किया। तो हम कर तो रहे हैं, अब कर रहे हैं। रिमाइंड करा दे कि आपकी तुम्हारा काम दिल्ली की सड़कों पे दिख रहा है, क्या किया है तुमने? आपकी गवर्नमेंट की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है और अपोजिशन की उतनी ही कम है, तो अगर कोई भी बिल आएगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपकी गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स सपोर्ट करेगी, और अगर सपोर्ट करेगी तो बिल तो पास ही होएगा, क्योंकि हम भलाई के लिए काम करें, इसलिए हमारे साथ मेजॉरिटी। तुम्हारी भलाई दिख रही है दिल्ली की सड़कों पे, तो लोग सड़क पे ना क्योंकि आप लोगों ने उन्हें भड़का रखा है ना, बात मेजॉरिटी की आती है हर बार। अच्छा ठीक है, पंजाब से इधर मेजॉरिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर आप गलत बिल भी को पास करोगे तो आपकी गवर्नमेंट उसको भी सपोर्ट करेगी। पंजाब से दिल्ली हम लेके आए और ये डेमोक्रेसी ऑपोजिशन होगा अगर कुछ गलत होगा। डिक्टेटरशिप नहीं चलती यहाँ तुम्हारी, मीडिया भी खरीद ली, हमें भी खरीद लोगे। आपके यहाँ चली थी? कोई डिक्टेटरशिप नहीं चली, मीडिया भी खरीद रखी है और हमें भी खरीदने का सोच रहे हैं। बात सिंपल है, अपोज भी किया होगा तो जो अभी गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी की वजह से वो अपोज होती, मतलब अपोज करना भी इसका कोई मतलब मेजॉरिटी में इसलिए है क्योंकि हम लोग तुम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब किसी मेंबर ने बोला था कि फार्मर्स इलिटरेट है, आपको क्या लगता है जो मीडिया आज की डे पे फार्मर्स को इतना सपोर्ट कर रही है, जो बाकी स्टेट्स हैं जो भारत बंद को सपोर्ट कर रही है, क्या वो स्टेट के सारे लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स उस स्टेट के जो भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सब इलिटरेट है? क्या आपका ये कहने का मतलब है? ओके ठीक है, तो चंदन कुछ कहना चाहते हो? यस चंदन। सर ये जो वादा करते हैं सरकार जो भी है हमारी, ये कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ गए अच्छे दिन? सब मिट्टी में मिल गया। और ये जो सरकार के ऊपर भरोसा था ना वो भी चला गया, जो भी भरोसा था वो बचा कुचा वो भी चला गया। नहीं लाने की कोशिश तो की, तुम लोगों ने भड़का दिया उन लोगों, तो अब क्या कर रहे हैं? तुम ही लोग नहीं आने दे रहे तो क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, दिमाग चला गया है। अब इस प्रॉब्लम के बीच में फार्मर्स भी बीच में आके प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना? अभी वैसे भी वैक्सीन की केसेस इतने ज्यादा है हमारी कंट्री में और गवर्नमेंट उसी पे अपना सारे एफर्ट लगा रही है कि ताकि वैक्सीन अच्छे से इंडिया में ट्रांसपोर्ट हो जाए और उसके इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अभी बीच में फार्मर्स रोड पे खड़े हो रहे हैं, वो लोग इतने ज्यादा नंबर्स में है कि कुछ लोगों की और वो लोग पेट भर जाएगा आपका। वैक्सीन लग जाने से आपका पेट भर जाएगा। अगर फार्मर यहाँ पे सुसाइड कर देगा तो क्या आप वैक्सीन जाके उगाओगे? तो वैक्सीन खाए बिना भी तो मरने ही वाले हैं, वो कोई डिफरेंस होगा? कोरोना से मरने ही वाले हैं। कोई वैक्सीन का पॉइंट है ही नहीं। वैक्सीन के बाद तुम जिंदा रह जाओगे, ये बताओ। मेरा पॉइंट को तुम अपोज करो, तुम बताओ। वैक्सीन में खोट है सर, ये ऑडेसिटी गलत है कि मर जाएंगे। देखो खोट की बात कौन कर रहा है? खोट की बात सर इनकी सरकार में ही खोट है।
सर इनकी सरकार में ही खोट है सर सरकार बदलनी चाहिए। अभी तक थोड़े दिनों पहले तक चल रहा था कि पूरे के बिल में अमेंडमेंट करो, अब तुम लोग बोल रहे हो कि वापस ही ले लो। अरे कुछ दिनों में कॉन्फिडेंस रूल भी आ जाएगा, कुछ दिनों में कॉन्फिडेंस रूल आ जाएगा, 2 दिनों में तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। देखो सरकार गिरनी होती ना तो अभी 2019 में गिर चुकी होती, अगर गिरनी होती तो। 2019 में ये रंग नहीं दिखे थे ना, अब दिखे, अब गिरेगी। सर इतनी प्रॉब्लम थी 2019 में तो तब गिरा देते, तब भी तुम लोगों ने गिरा तो पाया। ठीक है, तो काफी लोगों ने काफी कुछ बोल दिया है, ठीक है। तो नाउ आई जस्ट वांट दी क्लोजिंग आर्गुमेंट्स। तो यस, आई एम गोइंग टू हर्षिता। हर्षिता, प्लीज क्लोज दी आर्गुमेंट हियर। Yes. Sir, I wanted to close this argument by just a point that the farmers have gathered a very large amounts by which the coronavirus can easily spread, and it is also very harmful. Some symptoms are shown in some people, but still they are neglecting the government. Tents and ambulance are there. Ambulance are standing near the farmers so that if anyone's condition gets bad, they would help them. But they are not ready to do the test, and they are not ready to. They are really very active that they feel like they will not have any coronavirus. They'll just stand and take amounts and nothing will happen to them. But many of people have shown the symptoms and they're not doing the test. So what can we say? It is a really critical situation which can even shake the country. बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला पॉइंट बिल्कुल हो चुका है, मतलब ठीक है, बिल्कुल हमने ले लिया है। लेकिन एक्चुअली मेन बात ये है कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से हम मरे ना मरने के चांस थोड़े ज्यादा है। लेकिन अगर एमएसपी हमको नहीं दी गई तो हम बिना खाए जरूर मर जाएंगे। तो मेन बात ये थी फार्मर्स की साइड से। तो कोरोना तो है, लेकिन कोरोना से लोग जिंदा, मतलब इतने लोग मर भी नहीं रहे। लेकिन अगर हमको एमएसपी नहीं दी गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। हम किसान बस जिंदगी भर फिर मतलब यही करते रह जाएंगे और पूरा सड़कों पे भी आ सकते हैं। सड़कों पे मतलब अभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, और अगर यही चलता रहा तो फिर वो बिना खाना खाए सड़कों पे ही आ जाएंगे और फिर उनको अल्टीमेटली मरना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एकदम ठप हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ले लिया है, कोरोना वायरस का टेस्ट उनका होना चाहिए, दोनों चीजों को इक्वल लेना चाहिए, बिल्कुल। एनीथिंग एल्स हर्षिता? No, sir. Okay, yes. Now I am going to Shreya. Shreya, please close the argument fast. Sir, I am closing this by saying that these laws are in interest of farmers only. There are many provisions of heavy penalty for violation of rules and regulation. और अब आप खुद देखो, आपके मतलब फार्मर्स को 5 रुपीज मिलता होगा, तो जो ट्रेडर है उसको 500 मिलता होगा। बीच में उनके आते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स, मिडलमैन, उन सबको हटा के पहला लॉ यही कहता है वो फ्रीली अपना कहीं भी बाहर जाकर बेच सकते हैं। दे डोंट नीड एनी लाइसेंस, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई फीस नहीं लग रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी स्टोरी हैज टू पर्सपेक्टिव्स। Okay, fine. Now I am going to Simran. Yes, Simran, close the argument fast. Yes, sir. I would like to close the argument by saying, as what Shreya just said, that every coin has two faces and every situation has two sides. So I would like to highlight the side of farmers. कि farmers यहाँ पे, of course, they agree to the fact कि यहाँ पे 3 bills उन्हीं के अच्छे के लिए लाए गए हैं, लेकिन अच्छे Okay. Yes, Manya, fast. Manya. यस सर। सो मेरे पास सिर्फ 2 शायरी है जो मेरे हिसाब से मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स को सम अप कर देती है। पहली, भ्रष्टाचारी सरकारें सत्ता से भगाई जाएगी, भ्रष्टाचारी सरकारें सत्ता से भगाई जाएगी, किसानों की सोई हुई किस्मत जगाई जाएगी। और मेरी दूसरी शायरी, किसानों की हालात देखकर जो गुस्से से फूल जाते हैं, किसानों की हालात देखकर जो गुस्से से फूल जाते हैं, नेता विधायक मंत्री बनने के बाद किसानों को भूल जाते हैं। यही 2 शायरी मेरे सारे पॉइंट्स को समाप्त कर देती है। Yes, now I'm moving to Shrestha Verma. Yes. यस सर, मेरे को भी काफी आर्ग्यूमेंट हो गया, तो मेरे को भी इन 4 पंक्तियों से ही अपना एंड करना है कि किसान को भड़काया है तुमने, किसान को ही भटकाया है तुमने।
किसान को भड़काया है तुमने, किसान को भटकाया है तुमने, जो इन 60 सालों में ना कर पाए तुम, वो हमारी सरकार ने करके दिखलाया है। ओके इन 60 सालों में फार्मर रोड पे नहीं आए थे, तुम्हारे में आ गए ना, वही तो तुम करके दिखा रहे हो। ओके भलाई करके ही तो करवाया है, भलाई कर रहे हैं, लेकिन तुम, मैंने कहा ना okay भड़का रहे हो okay तो तुम आएंगे ही उसके okay okay yes now I am moving to Dhruv Raghav. Yes, close the argument. Yes. सर, the Bharatiya Janata Party came to power promising to double farmer income, increase minimum support prices to 1.5 times the cost of production, rationalize agricultural market, make institutions procedure more efficient, promote value additions to food production. ये तो उन्होंने बोला था ये सब करेंगे, और डेटा के हिसाब से इनमें से सर कुछ ही पूरे हुए थे, तो अगर तुम सारे वादे पूरे नहीं कर सकते तो देते क्यों? बिल्कुल सही। और सर मैं फाइनली एक चीज बोल रहा था, तुम देश को जितना भी डिजिटल बना दो, गूगल रोटी नहीं दे सकता तुम्हें। Yes, Dhruv Agarwal. Yes, and the yes argument here. Yes, any few lines. सर तब मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सर देखो मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। ओके ओके ठीक है बोलो। सर तो तब मैं ये कह रहा था कि जो फार्मर ने वीट उगाया है, तो सर वो क्या करते हैं, उनका ये प्रोसेस होता है कि वो ठेकेदारों को सेल करते हैं, और जो ठेकेदार होते हैं वो उनसे बहुत ही चीप पैसों में उनसे खरीद लेते हैं। फिर जो ठेकेदार होते हैं वो उसे फर्दर सिटीज एंड और अदर गांव, रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में उसे बहुत ही डबल या ट्रिपल दाम में उसे बेचते हैं। तो फिर सरकार ने ये नियम दिया है कि फार्मर्स उन्हें डायरेक्टली भी बेच सकते हैं जो चाहे जितना चाहे वो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कि वो उन्होंने ये 3 सेक्शन निकाले हैं, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटीज ऑफ वीट, नॉर्मल वीट एंड वेरी बैड वीट। अब इसमें क्या है कि जो फार्मर है उसने तो अगर अपनी पूरी मेहनत से, अगर पूरी मेहनत हर दिन उसे वाटर करना, बहुत ही अच्छे से उसे उसकी केयर करने के बाद अगर उसका बहुत ही अच्छा वीट निकलता है, तो फिर वो उसे 1000 उसके ऊपर बेच सकता है, मतलब उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसों से बेच सकता है। ठीक है, you have 10 seconds only. Yes, बट quickly. अगर उसने फिर से उतनी मेहनत करके अगर उसका उतना वीट ना होगा और थोड़ा बैड क्वालिटी का हुआ, तो हाँ बिल्कुल उन्होंने बोला है बैड क्वालिटी है, इज वेरी गुड। यस, तो जो अरे बोलो हाँ एक बिल्कुल सेकंड सही, सर, हाँ बिल्कुल टेक योर टाइम। मैं बोलूं? ओके चलो ध्रुव अग्रवाल। यस वेरी ऐसा नहीं कोई मेरे को मैसेज कर रहा था, वही देख रहा था मैं। ओके सर कहानी खत्म हो सकती है इसकी, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट सुनने हैं, कहानियां नहीं सुननी। ओके ठीक है। यस नाउ आई एम कमिंग टू खुशी। प्लीज क्लोज द आर्गुमेंट फास्ट। यस खुशी, फास्ट खुशी। ओके सर मैं ये यस नाउ आई एम मूविंग। हाँ खुशी यस सर मैं इस डिस्कशन के बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो एक लाइन है ना गाने में कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो जिस मिट्टी पे आज किसान खाना बना रहे हैं हमारे लिए, अगर उन किसानों की मदद आप लोग नहीं कर सकते तो फिर सचमुच ये देश डूब जाएगा। बस यस एक सेकंड यस नाउ चंदन यस यू हैव 2 minutes क्विकली। सर आर्गुमेंट तो चलते रहेंगे हमेशा, कभी बंद नहीं हो सकते, लेकिन सर हमें जिससे उम्मीद थी उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। जब मोदी जी ने बोला था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, सर ये तो जुमला ही था एक तरह से, कुछ हो ही नहीं पाया इनसे। हमको थी जिनसे वफा की उम्मीद, वो तो जाने ही नहीं वफा क्यों क्या होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके yes now yes I am coming to Harshita. Yes, you were saying something, Harshita, or okay 1 second
Simran, yes, you were closing the argument. Yes. यस सर, मैं बस इतना क्लोज करने के चाहूंगी कि गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी बोल दे, एंड में फार्मर्स के अंदर इतनी तो अकल है कि उनके लिए क्या ठीक है तो क्या नहीं। तो ये ना सोचने की जगह कि हम अपने डिसीजंस हम अपने डिसीजंस फार्मर पे थोप दे। गवर्नमेंट को फार्मर्स के साथ जाके एक डिस्कशन अच्छी सी करनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं, और ये एमएसपी हटा के एक मिनिमम सेलिंग प्राइस रख देना चाहिए ताकि फार्मर्स को पता रहे, उनको एक फिक्स प्राइस मिल जाए कि इससे कम हमें नहीं मिलेगा। जो भी उनके साथ करप्शन हो रहा है कि कम से कम पे उनको दिया जा रहा है, इससे कम पे अगर मिला तो जाएगा जेल पे। उसके बाद गवर्नमेंट जो रूल्स डालेगी फार्मर्स एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन एक ऐसा प्राइस तो आना ही चाहिए जो फार्मर्स को अश्योरेंस दे कि इससे कम पे हमारा लॉस नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना था। ओके, यस। तो फाइनली यहाँ पे था हमारा पूरा का पूरा ये डिस्कशन। ठीक है, काफी लोगों ने गवर्नमेंट की साइड बहुत अच्छे से ली है और फार्मर्स की साइड भी बहुत अच्छे से लिया है, और कुल मिला के पूरा जो कंक्लूजन है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि फार्मर्स जो है अब यहाँ पे अगर रोड पे आया है तो ऑफकोर्स वो पॉलिटिकल पार्टीज की साइड से थोड़ा बहुत हो सकता है मे बी, लेकिन हम ये कह दें कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि हमने मीडिया के जरिए साफ साफ देखा है कि किसान बहुत ज्यादा नंबर्स में आए हैं और वो पंजाब, हरियाणा और कुछ और अदर स्टेट से भी आए हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से, ये सरासर गलत होगा। मे बी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो उसमें राजनीति कर रही होंगी, उन्होंने कुछ, जैसे आज भारत बंद था तो कुछ फार्मर्स का सहारा लेके उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर कर दिया होगा, लेकिन किसान अगर आज रोड पे है तो जरूर उनकी कुछ ना कुछ डिमांड है। एमएसपी को लेके इतने वादे किए गए थे, तो इसीलिए अब वो उसी उम्मीद में यहाँ पे आए हैं। और गवर्नमेंट की साइड से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी कोई धोखा नहीं दिया है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से मीटिंगें कर रही है किसानों के साथ, कम से कम 5 दौर की बातें हो चुकी है, तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर नहीं सुनना होता तो वो शायद मीटिंग करते ही नहीं, लेकिन पूरा एक बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है दोनों साइड से ही। तो किसान चाहते हैं रोल बैक हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि रोल बैक होना मुश्किल है, लेकिन हाँ हम अमेंड जरूर कर सकते हैं। तो कल परसों और भी ज्यादा मीटिंग होने वाली है, तो उसमें उम्मीद होगी कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे दोनों ही सेटिस्फाइड होंगे और फाइनली फिर ये प्रोटेस्ट पूरा यहाँ पे खत्म होगा। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट सेशन, थैंक्स अ लॉट, or it सर was a जीता कौन? wonderful session, and we will tell you on the group. Okay, so bye bye, take care, Thank you, sir. and thanks a lot for joining the session. Sir. Thank थैंक यू you, सर। sir.